learning maths in easy way. Start chapter number 2, polynomials of class 9. But before starting this chapter, we have to recall some terms which we have studied in the class 8. So first one is algebraic expressions. तो हमने क्या पढ़ा था कि it is a combination of the variable and constant. Okay, so example is 3x square plus 9x plus 7 here. ये जो है x and this is variable and these numbers are constant. So what are the variable and constant? Variable is whose value is not fixed. That means which can vary according to the question. जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो होती है वो डिफरेंट आती है. तो दैट मीन्स इट इज सेम एज अ वेरिएबल कि वो वैरी करती रहती है. और वी रिप्रेजेंट इट ए टू जेड. हम किसी भी अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक एक्स वाई पी क्यू एक्सेट्रा. एंड द कांस्टेंट इज हुज वैल्यू इज फिक्स्ड. मीन्स किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये इंटीजर्स से रिप्रेजेंटेड होते हैं, मीन्स नंबर से रिप्रेजेंटेड होते हैं. इट मे बी अ पॉजिटिव नंबर और अ नेगेटिव नंबर. तो हम उसे कह देते हैं कि कांस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड थ्रू द इंटीजर्स और लाइक -1, 0, 100, 2015 and so on. So polynomials are what? It is an algebraic expression in which the power of the variable is a whole number. Okay, that means कि कोई भी algebraic expression जिसमें variable की जो power है it is in whole number. अब यहाँ पर example है. Here the variable is this. Here is 3, here is 2 and here is 1. So these are the powers of x और ये सभी क्या है? These are in the whole numbers. So it is a polynomial. Now consider is 1 upon x square plus 9. Here what is? यहाँ पर तो क्या है? ये पॉजिटिव ये होल नंबर में ही है, लेकिन वी कांट सॉल्व इट. और हम जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो इट विल बी लाइक दैट. तो ये क्या है? ये जो पावर है इट इज नॉट इन अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ polynomial. And the same as here the power of the variable this, it is in the rational form or the fractional form, so it is also not a polynomial. Now discuss the terms. What are the terms of the polynomial? So I write here one example of the polynomial. So what are the terms in this? ये it is a one term. It is term. ये जो separate होती हैं by the mathematical sign, these are called the terms. So terms are here. Terms are 4x cube, 3x square, x and 9. And the next concept is degree of the polynomial. Now what is the degree of the polynomial? Polynomial में जो भी highest degree होती है मीन्स highest power of the variable is called the degree of the polynomial. इसी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. 4x cube plus 3x square plus x plus 9. ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. सो ये ऑलरेडी इट इज अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर. कैसे? कि पावर्स के अकॉर्डिंगली हमें इसको अरेंज असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया हुआ है. हियर इज 3, हियर इज 2, हियर इज 1. सो द हाईएस्ट पावर इज दिस इज 3. सो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या हो गया? 3. Is that clear? Come to the next topic is types of the polynomial. So there are, I write here the two types based on terms and based on degree. Means based on terms the type of polynomials are different and based on degree are different. So first I will discuss based on terms. टर्म्स क्या होता है कि फर्स्ट आई विल टेक हियर द वन टर्म. यदि किसी भी पोलिनोमियल में वन टर्म है तो इट इज कॉल्ड द मोनोमियल. व्हाट? मोनोमियल. सो एग्जांपल ऑफ मोनोमियल इज x, 3x, 5y. ओके, एंड द सेकंड इज टू टर्म्स. इट इज कॉल्ड द बाइनोमियल. मीन्स किसी भी algebraic expression में when there are two terms it is called the binomial. two terms कैसे होती है हमारी? like that. okay, और it is 5y plus 3 like.
तो देयर आर व्हाट, ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, सो इट हैज द टू टर्म्स सेम एज हियर टू टर्म्स, सो इट इज कॉल्ड द बाइनोमियल. एंड द थर्ड वन इज थ्री टर्म्स, it is called trinomial. Okay, trinomial means as the name shows three terms are there, like 5x square plus 7x plus 11. So here it is one term, it is one term, it is one term. तो कुल मिलाकर कितनी टर्म होगी, three terms. It is called the trinomial. And it is more than three terms. More than three terms जो भी होती हैं, it is called the polynomial. Okay, वो सब polynomial की कैटेगरी में आ जाती है. So the example of 3x cube plus 2x square plus x plus 9. Here 1, 2, 3, 4 और भी हो सकती है. It is the more than three terms. So वो 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है. तो these all are categorized as polynomial. Now start with based on degree. Based on degree किस टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं? Based on degree से शुरू करेंगे सबसे पहले कि when the degree is 0. ओके, जीरो का मतलब हो गया कि जहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो जीरो है. इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल एग्जाम्पल हो गया एज 3 और x, सॉरी 3, 5. जैसे अब यहाँ पर क्या है, हमें कैसे पता चला इट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? बिकॉज यहाँ पर क्या है 3x टू द पावर 0 एंड दिस वैल्यू इज 1, सो इट इज ऑटोमेटिकली 3 हो गया. तो दैट मीन्स वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल. एंड द नेक्स्ट वन इज व्हेन द पावर इज 1, पावर इज 1, इट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया कि where the power of the variable is 1. For example हो गया 2x plus 5 और here 3x, like that. Here the power of the variable is 1 in both the expressions. Okay, and the third one is when the power is 2. It is called quadratic polynomial. ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वेयर द पावर इज 2, लाइक 5x स्क्वायर. ओके, 3x स्क्वायर प्लस 9. यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज द पावर, ये क्या वेरिएबल और ये है पावर. सो पावर इज पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, हियर इज ऑल्सो 2, सो इट इज कैटेगराइज्ड एज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एंड द थर्ड वन इज when the power is 3, it is called cubic polynomial. ओके, यहाँ पर क्या हो गया, वही सेम एज जहाँ पर पावर 3 हो वेरिएबल की. सो हियर एग्जाम्पल इज 3x क्यूब, 7x क्यूब, 5x क्यूब प्लस 9. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल. एंड दिस इज व्हेन पावर इज 4, इट इज कॉल्ड बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, जहाँ पर पावर हमारी क्या हो वेरिएबल की 4, दीज आर कॉल्ड द बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. एंड एग्जाम्पल इज x to the power 4. If it is a single term but it is a biquadratic or plus 3x cube plus 2x square plus x plus 11. So it is categorized as the biquadratic polynomial. So these are the types of the polynomial based on degree. Now come to the next topic, zeros of the polynomial. Now what are the zeros of polynomial? Zeros of the polynomial are the values of the variable. ये कौन सी वैल्यू होती है, वेरिएबल की कुछ वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स जीरो. जिस वैल्यू के लिए, मतलब इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज दैट वैल्यू जिसके लिए वो पूरा जो पोलिनोमियल है इट बिकम्स जीरो. तो कैसे करते हैं, और ये जो मेथड है यू हैव स्टडीड इन क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेयर द नेम इज ट्रायल एंड एरर मेथड. हम क्या करते थे कि वहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द px, और जिस वैल्यू के लिए वो इक्वल आ जाता था तो हम उसे बोलते थे कि दीज आर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. अब क्या करना है हमें, यहाँ पे वी विल पुट हियर जीरो. लेट कैसे करेंगे, दिस इज द एग्जाम्पल हियर. आई
put here x is equal to 0. So the value we have to write like that, p0. जहाँ भी x है वहाँ पर वो रिप्लेस करेगा 0 को. So here 0 0 0 these are multiplied by 0. तो ये टर्म 0 हो गई और आंसर आ गया हमारा 7. तो दैट मीन्स इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द 0, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू 0 नहीं हुई. तो दैट मीन्स इट इज नॉट द आंसर. ओके, नाउ द पुट x is equal to 1. So it is p1. 3 1 cube plus 2 1 square minus 12 1 plus 7. So here it is 3. क्योंकि 1 cube is 1. Here 1 square is 1. 3 plus 2 minus 12 plus 7. So it will be 5 minus 12 plus 7. And the value is minus 7 plus 7, that is 0. तो that means अब क्या है, हमारी ये जो p1 है यहाँ पर आकर इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई. So x is equal to 1 is called 0 of the पोलिनोमियल. मीन्स जिस वैल्यू पे वेरिएबल की जिस वैल्यू पे हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाता है, पोलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल. Before starting the remainder theorem, if you like my video, so like my video, subscribe my channel and hit the bell icon. And then we come to the remainder theorem. So remainder theorem is what? It is let fx be any polynomial of degree 1 or greater than 1. मीन्स जो हमारा fx है, जो एक पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री या तो 1 है या वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ओके, एंड लेट a बी द रियल नंबर. a क्या है? इट इज अ रियल नंबर if fx is divided by the linear polynomial x minus a. मीन्स जब हम उस पोलिनोमियल को x minus a एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, देन द रिमाइंडर इज f. यहाँ पर आई राइट हियर कि इसका क्या मतलब है? इट इज fx इज व्हाट? इट इज डिविडेंड. इट इज व्हाट? इट इज डिवाइजर. qx is what? qx is quotient. And plus fa is what? It is remainder. So the theorem is that कि जब भी हम किसी पोलिनोमियल को एक किसी भी फैक्टर से, मीन्स एक रियल नंबर है और x माइनस ए से इसको डिवाइड करते हैं, तो qx विल बी द कोशिएंट एंड fa इज रिमाइंडर. ओके, और ये हमने बहुत सारे इक्वेशंस में किया भी है. अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक सिंपल नंबर्स का कि इफ आई राइट हियर 25/7, तो व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? कि हम क्या करते थे? वी विल डिवाइड इट. 7 3s are 21 and this is 4. Here 3 is quotient and 4 is remainder. ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर हमें करना है कि डिवाइड करना है. तो हमें कैसे पता चला कि व्हाट इज द रिमाइंडर? जब हमने इसको डिवाइड किया. ठीक है, अभी मैं इक्वेशन पे आते हैं इसके साथ कि द नंबर इज 2x स्क्वायर. मीन्स fx इज 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 7. ओके, और जो हमारा रियल नंबर है दैट इज लीनियर पोलिनोमियल इज x माइनस, मीन्स इट इज द डिवाइजर. तो ये हमें क्या करना है? ये x माइनस 4 है, सॉरी. तो अब हमें क्या करना है कि फाइंडिंग द रिमाइंडर हमें क्या करना होगा? पूरा लंबा वाला प्रोसेस करना होता है. ठीक है, ये हमने किया. इसको डिवाइड हमने 8th स्टैंडर्ड में वी हैव स्टडीड दैट कि व्हेन वी विल सॉल्व इट साइन विल बी चेंज. दिस कैंसिल आउट. 8x माइनस x इज 7x प्लस 7. अगेन वी हैव टू डू 7x प्लस 7. हियर रिमाइंडर इज 0. अब हमें पता चला यहाँ रिमाइंडर 0 है. तो इतना सब कुछ करने के बाद कोशिएंट हमें निकालना पड़ता है, यहाँ से रिमाइंडर निकालना पड़ता है. तो हमें रिमाइंडर थ्योरम क्यों पढ़ाया गया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि थ्योरम आई? तो इसके जो इसका रीजन है इज दैट ओनली कि वी कैन फाइंड आउट डायरेक्ट द रिमाइंडर. कैसे कर सकते हैं आप वो? जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल
x cube minus 3x square plus 4x minus 40 and this is ठीक है. Am I writing? I am writing here कि it is a polynomial. ये क्या है हमारा? It is fx. Okay, and it is what? It is a factor of that. तो हम क्या करेंगे? If we write here, ये यदि इसका factor है, तो that means we can write it like that. X is equal to minus 2. Okay, and now we have to put this in this minus 2. Okay, minus 2 cube minus 3 minus 2 square 4 minus 2 minus 40. It will be minus 8. It will be 3 into 2 to the 4 minus 8 minus 14. It is minus 8 minus 12 minus 8 minus 40. So now we calculated 12 and 8 20, 28, 28 and 40 is 42. ओके, सो हमने क्या किया? इस थ्योरम से वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर डायरेक्टली सो दैट दिस थ्योरम हैज कम. ओके, मतलब क्या है कि हमें इतना बड़ा डिवीजन प्रोसेस ना करना पड़े सो दैट वी कैन फाइंड द रिमाइंडर डायरेक्ट बाय दिस मेथड. सो दिस इज द थ्योरम. So take another example of this. Find the remainder when this is divided by x plus 3. So by this way जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था you can find out the direct remainder. So मैं आपको दोनों मेथड्स में कंपेयर करके बताती हूँ कि here the long division method जो हम पहले करते हैं x cube plus 2x square minus x plus 3. Okay, and we will divide it x plus 3. It will be x square. This is cancel out. And it will be minus x. Two x plus 3 and here plus 2, 2x plus 6. It is minus 3. Now this is the remainder. Okay, ये हो गया हमारा लॉन्ग प्रोसेस जिसे बच्चों को करने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, और बाय दिस रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड आउट डायरेक्ट द रिमाइंडर हाउ. It is x plus 3 is equal to this is we have to put here 0. So हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले. x is equal to minus 3 and now our polynomial is x cube plus 2x square minus x plus 3. Here we will put the value of x is minus 3 minus 3 cube plus 2 minus 3 square minus or minus 3 plus 3. Okay. It will be minus 3 into minus 3 into minus 3. That is 3 3s are 9, 3s are 27 of minus. Okay, minus 3 square is 9, 9 2s are 18. ये minus है, it will be when we open the bracket it will be plus 3 and plus 3 is here. Minus 27, it is 6 or 18 or 6, 24 and it is minus 3. सो दिस मेथड इज फॉर दैट कि आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है और डायरेक्ट. तो रिमाइंडर थ्योरम के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि यू कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर डायरेक्टली बाय डिवाइडिंग दिस. ओके, सो दैट दिस इज थ्योरम अप्लाइड. थैंक यू.